Hello guys, Neha Kausar from Pure Active Education. We will be dealing our video related to science and technology from various examinations. So first what we are going to do is we are going to consider the questions which came in previous year. You can follow us on Instagram, Telegram and Facebook as well. So let's start our questions and simultaneously we'll be seeing the solutions. So our first question is, which of the following has pH value 7? Our options are A, pure water, B, neutral solution, C, basic solution, D, acidic solution, E, none of the above or more than one of the above. It is the previous year's question of BPSC. So what is pH value? pH value is the hydrogen concentration, hydrogen ion concentration in a solution. The scale which we use for pH value is from 1 to 14. You will be knowing it, we have studied this in school. 1 to 14 the pH scale is. So the let's see pH value of all the of given options. So first, pure water. What is the pH value of pure water? It should be 7 only, because it is neither acidic nor basic solution, so it is 7. Neutral solution, obviously it is neither acidic nor basic, and so it should be 7. Basic solution is a solution whose pH value is more than 7, means 7 to 14. It should be 7 to 14. And the acidic solution is the pH should be less than 7. So as we can see here, our option is pure water can also be the option, and neutral solution. So we will be going with the option E, which is more than one of the above. So let's see our next question. Which of the following sorry which of the following element does not contain neutrons? So you might be knowing what is neutron. If not, let's see the option and then we'll be dealing with what is neutrons. Here the answer is option is oxygen, nitrogen, hydrogen, copper, none of the above. So what we know, there is an atom. An atom has a nucleus. The structure of atom has a nucleus. Inside this nucleus you have proton and also neutron. If you add this proton and neutron, you get a mass number. So if I am knowing the mass number, and if I minus this mass number with the number of protons here, so I'll be getting neutrons. So let's see oxygen. Oxygen mass number is, what is the mass number of oxygen is 16. Number of protons in oxygen is 8. So if 16 minus 8 is there, it means we have 8 neutrons. So this option goes wrong. Next is nitrogen. Again, nitrogen mass number is 14 and its proton is 7. So 14 minus 7 will be 7. That means 7 neutrons. This is also not our solution, right solution. Then hydrogen. Hydrogen mass number is 1. Hydrogen proton is 1. So if we minus 1 from 1, we are getting 0. That means 0 neutrons. So here we come with our answer, hydrogen. This is our right option. So similarly you can see for copper also, it's a mass number and then proton, and then you'll be getting it. Obviously it is more than 0. So this is what we have seen here. Let's go to our next question. Angstrom is a unit of angstrom. So what is this angstrom? Angstrom is a unit of measurement. Measurement of what? Now see, the options are wavelength, energy, frequency, velocity. What is the unit of wavelength? Wavelength unit is angstrom as well as nm, nanometers. Okay, so both are the options. So for first only we got this answer, wavelength is angstrom. What is wavelength? We have a spectrum of a light source is scattered in a spectrum, and that spectrum is divided in number of visible and infrared as well as, so this visible light. So these all visible light which you know it can be divided into VB Gior. So this VB Gior is something of
what we call violet light, blue light spectrum. So that is the whole spectrum with different wavelength. Wavelength is increasing and decreasing. So wavelength is, what is the wavelength? Wavelength is this wavelength is defining the light, the source of light having a specific wavelength. So energy, you know energy. What is the unit of energy? Energy unit is watt. Frequency unit is hertz, and velocity unit is meter per second. So these are some of the common units, common quantities whose unit we should be knowing, because it's generally asked in the exams, in generally BPSC exams these questions are asked. So now let's go to our next slide. Frequency is measured in, now we just in the previous slide we just discussed the unit. So frequency is measured in hertz. Okay, now meter per second, just now we discussed it as velocity. What is your power? Radian is your angle. What we measure the angle of pi. So now let's see our next slide. Who discovered DNA? What is our options? Option number 1, James Watson and Francis Crick. Option number 2, Gregor Mendel Johnson, Hargobind Khurana, none of the above. So see, you might be heard of the word DNA if you are preparing for any examination. DNA is deoxyribonucleic acid, which is our genetic material, which is responsible for genes, the genes which is carried forward from one generation to other generation. Okay, due to which what we appear today in our physical appearance because of this gene. And genes, if you go further, what genes is comprised of? It is comprised of DNA and RNA. So this DNA स्ट्रक्चर, DNA का जो स्ट्रक्चर है वो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डिस्कवर किया था कि इस तरीके से हमारा DNA दिखता है, स्ट्रक्चर उसका. तो ये आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देखते हैं व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड. ट्राइग्लिसराइड क्या है? अब ऑप्शंस देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस है. प्रोटीन सबसे पहले, ए. बी है कार्बोहाइड्रेट, सी फैट, डी मिनरल, ई नन ऑफ द अबव. अब देखिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए इस टाइप के क्वेश्चन. तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो बना है आपके ग्लिसरॉल से. ठीक है, ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल का डेरिवेटिव होता है, फैट का ग्लिसरॉल और फैट का डेरिवेटिव है. तो ये जो है ये अपने ब्लड में मिलता है. अगर कभी भी आपने ब्लड टेस्ट करवाया हो तो ट्राइग्लिसराइड का भी टेस्ट होता है, अगर कभी ऐसा सुना हो तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे ब्लड में जो फैट होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स होता है, जिसकी वजह से अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम आगे होती है. तो ये क्या आंसर इसका हो जाएगा? फैट दैट इज सी. तो ये हो गया. अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग. अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कभी ऐसे आते हैं कि आपको सडनली आंसर हो सकता पता हो, क्योंकि नॉर्मली हम रिपोर्ट्स वगैरह अपने आसपास के रिलेटिव्स के, अपने बड़ों के हम करवाने जाते हैं रिपोर्ट, तो हमें पता होता है ECG क्या होती है, किसके लिए होती है. उससे ज़्यादा आपको जानने की अभी नीड नहीं है. बट अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप थोड़ा भी साइंस जानते हो तो कभी डिजीज़ेस सुना होगा, एंसेफेलिटीज़ डिजीज़ होती है, एंसेफेलोपैथी होती है. ये सारी क्या होती है? ये सारी ब्रेन से रिलेटेड होती है. एंसेफेलो आया है इसका मतलब वो ब्रेन से रिलेटेड है. तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेन हो जाएगा. इस तरीके से हम अपना आंसर डिसाइड कर सकते हैं कुछ केसेस में. तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बॉडी टेम्परेचर इज़ रेगुलेटेड बाय. अब हमारे बॉडी में बहुत सारा फंक्शन होता है और हर फंक्शन एक ऑर्गन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो अब हम देखते हैं कि थैलेमस
ऑप्शन क्या है? थैलेमस, बी है हाइपोथैलेमस, सी सेरिबेलम, डी मेड्यूला, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब ये सारे जो पार्ट्स हैं ये सब ब्रेन के ही पार्ट्स हैं, ऑल पार्ट्स बिलोंग टू ब्रेन। बट अब हमें क्या जानना है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो कौन सा ऑर्गन रेगुलेट करता है। तो देखिए यहाँ से जो थैलेमस है ये बेसिकली हमारे सेंसरी सिग्नल्स से रिलेटेड चीज़ें को देखता है और कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस ये हमारा टेम्परेचर बॉडी का रेगुलेट करता है, साथ साथ हार्मोन सिक्रीट करने में भी हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, तो उस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये छोटा सा हाइपोथैलेमस होता है। मेड्यूल सेरिबेलम जो होता है वो आपके ब्रेन के पीछे साइड में एक पार्ट होता है, और मेड्यूला इज़ अ लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो आपके बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है। तो हमारा आंसर इसमें हमने क्या देगा, हमारा आंसर है हाइपोथैलेमस जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट दिया हुआ और हमें देखना है कि इसमें सही कौन सा है। wavelength of red light is less than violet light, wavelength of red light is more than violet light, wavelength of violet light is more than green light, wavelength of violet light is more than yellow light, none of the above, more than one of the above। अब देखिए हमें ये पता होना, ये जो है वॉयलेट, रेड, ग्रीन, येलो, ये सब क्या है, ये हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट है। जब कोई भी एक लाइट एक पॉइंट सोर्स से आती है तो वो किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण अलग अलग कलर में डिस्पर्स हो जाती है, स्कैटर होती है। तो ये जो स्कैटर होती है एक सिंगल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, वो अलग अलग कलर में स्कैटर होती है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम का जो हमारा कलर होता है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में VBG और भी बोलते हैं, VBG, YO और R। अब इसमें जो है जैसे यहाँ से हम शुरू करते हैं, V is for violet, B is for blue, G is for green, Y is for yellow, O is for orange and R is for red। हमारा जो वेवलेंथ होता है वो यहाँ से इंक्रीज करता है। 380 से हमारा शुरू होता है वेवलेंथ लाइट का, और वो रेड के और यहाँ से इंक्रीज होगा और वो लास्ट जाएगा इसके रेड के। तो रेड 380 से शुरू हुआ है और रेड तक ये जाएगा, तो मतलब ये इंक्रीज हो तो जाएगा। वॉयलेट जो है वो ब्लू से कम हो गया, ग्रीन जो है वो ब्लू से कम हो गया, वॉयलेट ब्लू से कम हो गया, ग्रीन ब्लू से ज़्यादा हो गया, येलो ग्रीन से ज़्यादा हो गया, ऑरेंज का येलो से ज़्यादा हो गया और रेड का ऑरेंज से ज़्यादा हो गया। तो इसमें हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ मोर देन वॉयलेट लाइट, क्योंकि रेड लाइट से कम तो है नहीं। वॉयलेट लाइट इज़ मोर देन ग्रीन लाइट, ये है नहीं क्योंकि वॉयलेट का सबसे कम है। वॉयलेट लाइट इज़ मोर देन येलो लाइट, वॉयलेट का सबसे कम है तो वो येलो लाइट से भी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें से हमारा आंसर क्या निकल के आया, बी। तो अब ये VB जो शॉर्ट फॉर्म है ये आप याद रख सकते हैं। फर्दर आप अगर इस टाइप के कोई भी स्टेटमेंट विजिबल लाइट से, विजिबल स्पेक्ट्रम से रिलेटेड आता है तो उसके लिए आपको आगे यूज़ हो जाएगा। सो नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल। इसमें आपको क्या बोला है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल पे कन्वर्ट करने बोला। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होता है, ये टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल होता है। जो हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं वो फ़ारेनहाइट या सेल्सियस स्केल में करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमें क्या करना होगा, अब ऐसे केस में क्या है, आप सीधे आंसर पे नहीं पहुंच सकते, आपको उसके लिए फॉर्मूला चाहिए। जो फॉर्मूला आपको यूज़ करके ही हम नॉर्मली उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, 40 है, 40 जो है 40 डिवाइडेड बाई 5 होगा। 5 से जब डिवाइड होगा हमारा आंसर आएगा 8। 8 इज़ मल्टीप्लाइड, वॉट एवर द आंसर इज दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 9, दैट इज़ 72, राइट। अब 72 जो आया इसमें हम क्या करते हैं, 32 ऐड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 104 डिग्री आ गया। 104 डिग्री इज़ आवर आंसर।
तो ये इसका क्या फॉर्मूला हो गया कि जो भी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसको हम 5 से पहले डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में उसमें 32 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आंसर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं और हमसे उसके क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं। अब ये है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है? फिर से ये यूनिट वाला क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं वॉट हमने पहले ही कर लिया था कि वॉट जो है वो एनर्जी का होता है, कूलम जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, वोल्ट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पावर होता है कूलम, और एम्पीयर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है। सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो इसमें क्या है, आपका एम्पीयर से शुरू करते हैं। एम्पीयर आपका इलेक्ट्रिक करंट का हो गया, वोल्ट आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, वॉट जो है वो पावर हो गया। और यहाँ पे किसका पूछा है? पावर का पूछा है, तो पावर का आंसर क्या हो जाएगा? डी वॉट। ठीक है, अब इस तरीके से हम इसके सारे यूनिट्स एक बार देख लेंगे और याद रखेंगे कि एम्पेयर का वोल्टेज, पोटेंशियल का, करंट का क्या यूनिट होता है। नेक्स्ट इज इन इलेक्ट्रिक मोटर। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, 5 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज हीट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोल रहा है इसमें? जो हीट है वो हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पहले आप ये देखिए, पहले हम एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे देखना है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब ये देखिए, जो इलेक्ट्रिक मोटर है हमारा, हम मोटर में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम उसको इलेक्ट्रिक दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी। मोटर क्या काम करता है? किसी भी चीज़ का, कोई भी बॉडी को ड्राइव करता है चलने के लिए, मतलब उसको एक फिजिकल फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि वो काम को पूरा कर सके। चाहे वो मोटर हमारे कूलर्स में लगे हो, चाहे वो मोटर पाइप के लिए लगे हो, चाहे वो पानी निकालने के लिए लगे हो। तो मोटर का बेसिकली काम क्या हो रहा है? हमारा फिजिकल वर्क को रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब वो, उसको हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया और उसने उसको किस में कन्वर्ट किया? मैकेनिकल में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये आंसर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी हमारे क्वेश्चंस ये जो आ रहे हैं बीपीएससी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अभी ये क्वेश्चंस थोड़े इजी है साइंस के। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 70% वाटर, 20 to 30% वाटर, 10 to 20% वाटर, 30 to 40% वाटर, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये आंसर लगभग हम सबको नॉर्मली पता होता है कि हमारे बॉडी में 70% वाटर ही है। तो ये इससे हमारा ऑप्शन ए क्लियर हो जाता है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें ये चीज़ पता रहती है हमेशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज़। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग किस डिवाइस से मेजर करते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, यहाँ पे 2 बार दिया हुआ है इसमें, सॉरी, पोटेंशियोमीटर। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है एमीमीटर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है, और एम्पियर और उससे जो करंट जो हम जिसको जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो हो जाएगा एमीमीटर। तो ये थोड़ा एक लगभग थोड़ा मिलता जुलता वर्ड है जिसको आप याद रख सकते हो और चाहो तो, या फिर डायरेक्टली आप एमीटर भी याद रख सकते हो। पोटेंशियोमीटर आपका पोटेंशियल वोल्टेज पोटेंशियल को करता है मेजर। सो लेट्स go to our next slide and see the next question. The main component of greenhouse gases। अब जो ग्रीन हाउस गैसेज है, आप सबको पता है कि ग्रीन हाउस गैस से कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और ये सब की वजह से ग्रीन हाउस गैस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। जो कॉमन, अब इसमें जो ऑप्शन है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो है वो आपका
क्या ग्रीन हाउस गैसेस मेन कंपोनेंट क्या क्या होता है? अभी ग्रीन हाउस गैस में आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है मेन कंपोनेंट जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद में मीथेन भी मेन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मेन है, नाइट्रस ऑक्साइड ही नीचे होना चाहिए था, ये गलती से ऊपर आ गया, तो नाइट्रस ऑक्साइड भी मेन है, ओजोन भी मेन है, इसके अलावा CFCs और HFCs भी आते हैं। इतने सारे मेन कंपोनेंट है, इट मीन्स इसमें से कोई एक ऑप्शन तो है नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इज़ द राइट आंसर। So let's go to our next question. आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर सी। वैसे तो आइंस्टाइन ने इतने सारे थ्योरीज दिए हैं कि उसको हर थ्योरी पे नोबेल प्राइज़ मिल जाना चाहिए, बट what he actually got Nobel Prize for is photoelectric effect in physics. फिजिक्स में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज़ इन 1921। सो जनरली लोगों को लगता है कि रिलेटिविटी के लिए मिला होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी दी गई थी, बट ही अल्टीमेटली गॉट इट फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बात याद रखना, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। सो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था जो आप वैसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर हाउस ऑफ सेल। अब सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं और हर ऑर्गेनेलीज का अपना एक फंक्शन होता है। सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल जो है वो बेसिकली रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करता है, और सेल वॉल बेसिकली प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, बैक्टीरिया और प्लांट में होता है, तो वो उसको शेप और रिजिडिटी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि ये ATP सिंथेसिस करता है, यही ATP आगे चल के आपका यूज़ होता है। उसके बाद में आपका आ जाता है राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। न्यूक्लियस के अंदर आपके हेरिडिटी मटेरियल होती है। सो दिस इज इन द सेंटर ऑफ द सेल। So what our answer is mitochondria B. ओके, सो किसी भी ऑर्गेनली का फंक्शन पूछ सकते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा हर ऑर्गेनल के फंक्शन के बारे में एक रफ आइडिया होना चाहिए। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स इज कॉज्ड बाय। अब एड्स के बारे में, एड्स हमेशा पेपर में आता है क्योंकि इसकी मेडिसिन अभी तक प्रॉपरली कोई बन नहीं पाई है। तो ये जो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाती है और मल्टीपल डिजीज उसमें आपको अटैक करती है, एंड योर इम्यून सिस्टम इज नॉट एबल टू फाइट टू दैट डिजीजेज, राइट। तो अब ये जो है हमने हर जगह सुना है कि एड्स जो है HIV से होता है, HIV होता है। HIV क्या होता है? HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो है ये इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है ह्यूमन बॉडी के। तो अब ये क्या HIV मतलब ये क्या बोला हमने? वायरस। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस। बैक्टीरिया, फंगस और वाटर आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये जनरली न्यूज़ में होता है और लोगों को पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे? हाइड्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लेक्टोमीटर। देखो हाइड्रोमीटर क्या करता है? हाइड्रोमीटर आपके ये इसमें क्या है? हाइड्रोमीटर जो है वो किसी भी लिक्विड का डेंसिटी मेजर करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है, राइट। उसके बाद में हाइग्रोमीटर है, ये ह्यूमिडिटी मेजर करता है। पायरोमीटर बॉडी ये टेम्परेचर जो कुछ सरफेस, अगर हम लोग किसी सरफेस का टेम्परेचर चाहिए तो वो हम पायरोमीटर यूज़ करते हैं उस केस के लिए। लैक्टोमीटर जो बेसिकली होता है ये मिल्क के वाटर क्वांटिटी चेक करने के लिए होता है, ये मिल्क में कितना पानी। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? B, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का डेफिनेशन हमारे हिसाब से क्या है? सॉरी, प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, राइट। वो हमें डेफिनेशन नॉर्मली पता होता है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो फोर्स अप्लाई जो होता है, फोर्स की यूनिट क्या है?
फोर्स का यूनिट हम ऐसा यूनिट जो देखते हैं ना वो न्यूटन होता है, और एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर पे डिनोट होता है, ठीक है। तो इससे प्रेशर का एरिया क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वैसे ऐसा यूनिट प्रेशर का पास्कल भी होता है, अगर कभी पास्कल अगर ऑप्शन हो तो पास्कल विल ऑल्सो बी द राइट आंसर। तो ये दोनों आंसर है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन है, मैंने 2018 के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठाए थे, तो ये करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन है। वैसे मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है इसमें बिकॉज करंट अफेयर से रिलेटेड था उस समय। विच नेशन इनैक्टेड ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन लॉ फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडियन ओरिजिन इन अगस्त 2018? क्या होता है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन लॉ लाना इसलिए भी ज़रूरी होता है बिकॉज आपको किसी भी ट्रांसप्लांट ऑर्गन करने के लिए एक एथिक्स होता है, आपका बायो एथिक्स फॉलो करना होता है, ताकि आगे जो डोनर है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए और जो रेसिपिएंट है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दैट्स वाई एवरी कंट्री ट्राई टू इनैक्ट अ लॉ रिगार्डिंग इट। 2018 में उस समय यूके ने किया था, माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया के लिए यूके गवर्नमेंट ने किया था, ताकि किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट का कुछ हो तो वो भी हर्ट नहीं हो, हर तरीके से सब कुछ नॉर्मल रहे उस हिसाब से। तो हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ड्यू टू पोलियो आउटब्रेक इन जून 2018? देखिए वैसे पोलियो आउटब्रेक अफ्रीकन कंट्रीज़ में नॉर्मली होते रहता है, बिकॉज जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पोलियो का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर हमारी कंट्री भी पोलियो से सफ़र करती है। सो 2018 में अकॉर्डिंग टू WHO, जो जिस कंट्री ने पोलियो आउटब्रेक जून 2018 में डिक्लेयर कर दिया था एज अ इमरजेंसी, वो था पपुआ न्यू गिनिया। ये अकॉर्डिंग टू WHO का साइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू, अब हम UPSC के क्वेश्चन कंसिडर कर रहे हैं तो ये थोड़े लंबे और थोड़े उस तरीके से होंगे। विच ऑफ द start this IRNS with reference to the Indian Regional Navigation System satellite system, that is IRNSS. Consider the following statement. IRNSS has 3 satellites in geostationary orbit. IRNS covers entire India and about 5500 square kilometer beyond its borders. India will have its own satellite navigation system with full global coverage by middle 2019. Which of the following statement given below is or are correct? ऐसे क्वेश्चन जनरली आपके UPSC में पूछे जाते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट। IRNSS सबने न्यूज़ में सुना ही होगा, क्योंकि ये है अपना देसी GPS जो हमारे कंट्री में है। तो इसमें क्या है, नाविक भी इसको बोलते हैं बिकॉज 7 सैटेलाइट है। तो इसका जो 3 सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में है, राइट। जो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। जो सेकेंड स्टेटमेंट है, IRNS कवर इंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। जो IRNSS है उसका रेंज 1500 स्क्वायर किलोमीटर है और 5500 स्क्वायर किलोमीटर नहीं है। ये जो 5500 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया है ये अग्नि 5 मिसाइल का, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये उसका रेंज दिया हुआ है यहाँ पे। सो व्हाट वी हैव इज़ कवरिंग एंटायर इंडिया एंड नॉट बियॉन्ड। सो ये गलत स्टेटमेंट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विथ फुल ग्लोबल कवरेज बाय मिडल ऑफ 2019। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, 1। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग फेनोमेना। स्टेटमेंट इसमें देखिए, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, मैटर वार्प्स इट्स सराउंडिंग स्पेस एंड टाइम। ये 3 स्टेटमेंट दे दिया गया है। अब पूछा क्या है, विच ऑफ द अबव इज और आर प्रेडिक्शन और प्रेडिक्शंस ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफन डिस्कस्ड इन मीडिया। अब इसमें ये पूछ रहा है कि ये ऑफन डिस्कस इसमें से कौन सा है मीडिया में। अब देखिए, जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो जनरली
अल्बर्ट आइंस्टाइन की वार्पिंग ही बताती है कि कैसे कोई मैटर जो है, हैवी मैटर, स्पेस एंड टाइम के उस पर वार्प करता है, एक वार्पिंग प्रोड्यूस करता है। जैसे आप किसी पत्थर को पानी में फेंकते हो तो वो जो एक सर्कुलर टाइप का स्पेस जो कह लो या एक भंवर टाइप क्रिएट करता है, दैट इज़ व्हाट हैपन्स इन द यूनिवर्स when gravity is there and a heavy planet will produce a warp over there. Okay, so ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की है। यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, ये जब हबल टेलीस्कोप बना था उसके बाद में साइंटिस्ट ने ये चीज़ कंफर्म करी थी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का पहले का प्रेडिक्शन था। लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, ये भी एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी जो आजकल इन न्यूज़ में रहती है। So these all three statements are correct, so our answer will be D. Okay, तो ये सारी कुछ चीज़ें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सब आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, एक उनका आउटलाइन, ताकि ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आगे हैंडल करने में इजी हो यूपीएससी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ टर्म्स है जो न्यूज़ में आए हो और उसके कंटेक्स्ट के किस कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ में रहा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, बी टू एक्सपेरिमेंट, इसका दिया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी, क्रिस्पर कैस9, पार्टिकल फिजिक्स। अब इसमें जो है, जो मोस्टली इन न्यूज़ में जो जनरली रहता है वो पहले देखते हैं। क्रिस्पर कैस9, ये नॉर्मली हमने सुना हुआ है कि ये एक मॉलिक्यूलर सिजर्स है जो आपके डीएनए को मॉडिफाई करने में काम आता है फॉर जीन मॉडिफिकेशन। तो क्रिस्पर कैस9 एक एंजाइम है, ठीक है। तो ये किस कंटेक्स्ट में आ जाता है, यह आता है आपके बायोटेक्नोलॉजी के कंसेप्ट में। तो इससे क्या हो गया, ये पहला तो ये थर्ड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अगर ऑप्शन में जाएंगे तो आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। वी आर लेफ्ट विथ ओनली ऑप्शन बी। तो हमें वैसे तो आंसर हमारा मिल गया है, बट फिर भी हम नॉलेज के लिए थोड़ा देख लेते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ऊबर, ये सब, लिथेरियम, ये सब बहुत न्यूज़ में थी। तो ये सब किस वजह से न्यूज़ में थे, बिकॉज दे वर डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑपरेट करती है, जिसमें आपका जो सेंट्रल कंट्रोलिंग कोई अथॉरिटी नहीं होती है। बेल टू एक्सपेरिमेंट, ये जो है, ये एक्सपेरिमेंट पार्टिकल फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट जो जापान ने किया था, इसलिए इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं होगा। सो जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने बता दी कि पार्टिकल फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है, जापान ने किया था। ओके, तो आंसर हमें मिल गया इसमें भी। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स कार्बन फर्टिलाइजेशन। कार्बन फर्टिलाइजेशन जैसा टर्म अगर कभी न्यूज़ में सुना हो तो हम स्टेटमेंट पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफेयर, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफेयर। ये आप सबको पता है कि ये कार्बन फर्टिलाइजेशन, इसको नहीं बोलते, इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते, राइट। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशंस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम क्या बोलते हैं, जनरली द टर्म इज यूट्रोफिकेशन। Adaptation of all living beings on earth to the climate change brought about the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ है तो वो कार्बन प्लांट से रिलेटेड चीज़ हो सकता है। इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर, ये एक सही है कि क्या होता है, जब कार्बन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और क्योंकि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो उसका प्लांट ग्रोथ बढ़ता है। तो दिस इज द राइट आंसर। Okay, so we'll see our next question. This is a lengthy question। इसमें एक सिचुएशन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि ये किस कंटेक्स्ट में सही है, ये क्या सिनेरियो में ये चीज़ सही होगी, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट अप्लाई हो रही है। When the alarm of your smartphone rings in the morning, you wake up and tap it to stop the alarm, which causes your geyser to be switched on automatically. The smart mirror in your bathroom shows the day's weather and also indicates the level of water in your overhead tank. After you take some groceries from your refrigerator for making breakfast, it recognizes the shortage of stock in it
and places an order for the supply of fresh grocery items. When you step out your house and lock the door, all lights, fans, geysers and AC machines get switched off automatically. On your way to office, your car warns you about traffic congestion ahead and suggests an alternative route. And if you are late for the meeting, it sends a message to your office accordingly. ये सारे जो हमने अभी सिचुएशन पढ़ी, ये एक टेक्नोलॉजी है जो आप अप्लाई, एक टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जो अप्लाई हो सकती है हमारे डे टू डे लाइफ में इन द कमिंग ईयर्स. इन दिस कंटेक्स्ट, इमर्जिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट अप्लाइज टू द अबव सिनेरियो. अब इसमें देखिए, VPN तो नहीं होगा, वो नेट से रिलेटेड है. इंटरनेट प्रोटोकॉल भी आपका जो हम नेट और साइट्स यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड है. बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल नहीं हो सकता. इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, बिकॉज बहुत इंटरनेट में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है और एक दूसरे से लिंक होती है फॉर एनहांसिंग टू डू योर फिजिकल वर्क जो हम नॉर्मली करते हैं, उस पर अगर साथ देती, दैट ऑल थिंग्स आर इंटरनेट ऑफ थिंग्स. और ये जो एक एग्जाम्पल है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही एग्जाम्पल है. ओके, ये चीज़ समझ में आई. तो इस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. Let's go see the next question. With reference to solar power production in India, consider the following statement. ये स्टेटमेंट दिया हुआ है नॉर्मली, ये एक, तो इसमें आपको देखना है कि ये सही है या नहीं. India is the third largest in the world in the manufacture of silicon wafers used in the photovoltaic units. The solar power tariffs are determined by the Solar Energy Corporation of India. अब इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो देखो, थर्ड लार्जेस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स गलत है, बिकॉज इंडिया डज नॉट स्टैंड इन द थर्ड, इट इज़ 10th और 11th पोजीशन. सेकेंड इज सोलर पावर टैरिफ डिटरमाइंड बाई सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. वैसे तो अगर तुम देखोगे तो ये मार्केट ड्रिवन होता है, बट इट इज़ डिसाइडेड बाई जो सेंटर से है PGCIL, इसमें इन्वॉल्व रहते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड नॉट द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन. दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट गलत है. हमारा ऑप्शन है डी. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन GPS टेक्नोलॉजी बी यूज्ड. इसमें बोल रहा है कि इनमें से किस किस जगह में हम GPS यूज़ कर सकते हैं. मोबाइल फ़ोन ऑपरेशंस, हाँ हम मोबाइल फ़ोन ऑपरेशंस में GPS यूज़ करते हैं, हमारे सारे मैप्स उसी से रिलेटेड होते हैं. बैंकिंग ऑपरेशंस में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम ATMs वगैरह लोकेट करते हैं थ्रू GPS ओनली. कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स, अब देखो इसमें ये है कि 1 और 2 तो ऑप्शन है, राइट. 1 और 2 जो है ये दोनों सही है. इसमें 1 एंड 2 कोई ऑप्शन है वैसे तो नहीं है. तो व्हाट दैट मीन, दैट मीन्स कि हमारा ये ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है 1, 2, 3. अगर आपको इसके बारे नॉलेज नहीं है कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स, तो वैसे पावर ग्रिड कंट्रोल करने के लिए भी GPS यूज़ होती है, बट अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो भी वी कैन गो फॉर डी विच इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हैंडल आप कर सकते हो अगर आपको एक ऑप्शन नहीं पता हो तो. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Earth's magnetic field has reversed every few 100,000 years. When the Earth was created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. When living organisms originated, they modified the early atmosphere of the Earth. अब ये क्वेश्चन हम एक एक स्टेटमेंट वाइज देखते हुए चलेंगे. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स, अभी भी अगर आप न्यूज़ पे सुनोगे तो ये भी एक क्वेश्चन है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अभी कनाडा से साइबेरिया की तरफ मूव हो रहा है, तो बट ऑब्वियसली ये पहले भी मूव हुआ है, रिवर्स हुआ है. दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन, अब ये जो यहाँ पे बोल रहा है कि नो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम ओरिजिन या इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में स्पीशीज़ का इवोल्यूशन देखते हैं तो हमें ये पता है पहले जो स्पीशीज़ थी वो ऑक्सीजन नहीं जनरेट करती थी. तो इससे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. जब हमारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आए उसके बाद ही ऑक्सीजन वहाँ जनरेट हुआ है मॉडिफाई होके. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे जैसे आए वैसे वैसे एटमॉस्फेयर जो वो मॉडिफाई हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है. पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भरा हुआ था एटमॉस्फेयर में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आते हुए इसमें ऑक्सीजन आए, तो इसका मतलब है ये मॉडिफाई हुआ है. सो दैट मीन्स योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, योर थर्ड स्टेटमेंट इज राइट. सो योर आंसर विल बी सी.
Okay, so let's see our next question. The terms WannaCry, Petya and Eternal Blue sometimes mentioned in the news recently are related to. ये वाना क्या है, पेटिया इटर्नल ब्लू, वैसे आपको याद तो नहीं होगा, बट अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि ये जो है ये अटैक, रैंसमवेयर अटैक हुआ था 2018 में। तो ये क्या हो जाता है, आपको साइबर अटैक्स हो जाते हैं, ये अटैक करते हैं आपके विंडोज़ में, आपके प्रोग्राम पे जो चलता नहीं है, विदाउट दे डिमांड अ रैंसम अमाउंट इन बिटकॉइंस, देन ओनली यू कैन एक्सेस योर कंप्यूटर. So next question is 3D printing has applications in which of the following. 3D printing जो है वो one of the good example of technology है. 3D printing हर फील्ड में आजकल एप्लीकेबल और यूज़ होते हैं. प्रिपरेशन और कन्फेक्शनरी आइटम्स हमने हमेशा सुना है कि ये यूज़ होता ही है अभी जितने भी टाइम है. मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक ईयर्स, जितने भी जो टिश्यू है, टिश्यू को वो इंक, हमारा जो स्टेम सेल्स बोल लो या स्टेम सेल्स नहीं, लैब कल्चर्ड सेल्स, उसको इंक में करके हम 3D बायोनिक ईयर्स भी बना रहे हैं. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ हो ही रहा है, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज में यूज़ हो रहा है, डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज में हो रहा है. 3D प्रिंटिंग हर जगह एप्लीकेबल है. सो हमारा आंसर है 1 2 3 4 एंड 5. एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आई है जो हर जगह यूज़ इसका है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार provides open application programming interfaces. What does it imply? It can be integrated into any electronic device. Online authentication using iris is possible. ये जो है ये हमारे जो मिनिस्ट्री है वहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन थी, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री में, कि ये जो आधार है ये एक API है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, कि इसको को लोग यूज़ करके और इसके थ्रू बाकी जो भी एप्लीकेशन बनाना है वो कर सकते हैं, उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो इसका एक एग्जांपल जैसे EKYC अनॉल करते हैं, तो दिस इज़ गुड एग्जांपल ऑफ दैट कि हम उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं. ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन है आईरिस से यूज़ करके, आईरिस और फिंगरप्रिंट्स यूज़ करके, दैट इज़ पॉसिबल. दैट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट सही है और हमारा आंसर है C. राइट. सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to digital payments, consider the following statements. डिजिटल पेमेंट आजकल पेटीएम से, भीम से, फ़ोनपे, गूगल पे हम ये सब करते हैं, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. भीम ऐप अलाउज द यूज़र टू ट्रांसफ़र मनी टू एनीवन विद अ UPI इनेबल्ड बैंक अकाउंट. While a chip PIN debit card has 4 factors of authentication, Bheem has only 2 factors of authentication. इसमें क्या बोल रहा है कि जो भीम ऐप है वो ट्रांसफ़र यूज़र टू ट्रांसफ़र मनी टू एनीवन विद अ UPI इनेबल्ड. अगर वो UPI इनेबल्ड बैंक अकाउंट है तो भीम से हम ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे. राइट. तो ये मतलब ये सही है क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल है. दूसरा जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, चिप पिन बेस्ड का 4 फैक्टर होता है और भीम का 2 होता है. तो अगर आप भीम का देखे होगा तो जब आप इस भीम ऐप को इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे एक ऑथेंटिफिकेशन फैक्टर आपसे मांगता है, आपका ID पासवर्ड. दूसरा आपका एक फ़ोन नंबर एंड ऑल. दूसरा आपका अकाउंट इंटीग्रेट करने के लिए, और तीसरा फाइनली पिन मांगता है जब आप ट्रांजैक्शन करते हो. तो ये 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है और 2 फैक्टर नहीं. इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. सो योर आंसर विल बी 1. ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और हमें कुछ पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to India's satellite launch vehicles, consider the following statements. PSLVs launch the satellites useful for Earth resources monitoring, whereas GSLVs are designed mainly to launch communication satellites. Satellites launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from a particular location on Earth. GSLV Mach 3 is a 4-stage launch vehicle with the first and third stages using solid rocket motors and the second and the fourth stages using liquid rocket engines. अब इसमें से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं, इसलिए हम आराम से एक एक स्टेटमेंट देखेंगे और हम डिसाइड करेंगे सही है या नहीं. PSLVs जो है ये बेसिकली अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग के लिए ही लॉन्च किया गया था और GSLVs को कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए ही
यूज़ किया गया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। जो नेक्स्ट है इसमें देखो, इसमें जो PSLV का P इज़ फॉर पोलार सैटेलाइट, G इज़ फॉर जियोसिंक्रोनस। अब जियोसिंक्रोनस क्या होता है? जियोसिंक्रोनस वो सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के अराउंड घूमते 24 आवर्स में, क्योंकि अर्थ भी 24 आवर में उसमें अपने रोटेशन करता है खुद में अपने ऑर्बिट में। और ये जो जियोसिंक्रोनस में होता है वो अर्थ के साथ 24 आवर में वो भी अर्थ के रोटेट करते हैं। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो PSLV है वो परमानेंटली फिक्स पोजीशन में दिखता है स्काई में, किसी भी एक लोकेशन से देखो तो। दिस इज़ ट्रू फॉर GSLV, क्योंकि वो अर्थ के साथ साथ घूमता है और इसलिए वो पता नहीं लगता है। इट अपीयर्स एज इट इज़ फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे जो बात हो रही है 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल की, जिसमें फर्स्ट और थर्ड स्टेज सॉलिड है और सेकेंड एंड फोर्थ स्टेज यूजिंग लिक्विड है, तो ये GSLV नहीं है, ये PSLV की बात हो रही है। GSLV में क्रायोजेनिक स्टेज होता है और वो PSLV में नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। सो आवर आंसर विल बी 1। ठीक है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट ही सही है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: birds, dust blowing, rain, wind blowing. Which of the above spread plant diseases? इसमें से कौन कौन से एजेंट है जो प्लांट डिजीजेस स्प्रेड करने के काम आते हैं? देखो, नॉर्मली हमने डस्ट ब्लोइंग सुना है कि उससे डिजीज़ कैरी होती है, प्लांट डिजीजेस। बर्ड्स एक्ट एज पैथोजेंस ऑफ कैरिंग एक्ट एज एजेंट ऑफ कैरिंग द पैथोजेंस। विंड ब्लोइंग की वजह से भी होती है। रेन एक थोड़ा डाउटफुल टर्म है, बट रेन ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग प्लांट डिजीजेस। सो इससे हमारा आंसर हो जाता है डी। डी इज़ द राइट आंसर ओवर हियर, बिकॉज सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। So let's go to next question. With reference to the genetically modified mustard developed in India, consider the following statement. GM mustard बना था, अगर कभी न्यूज़ में सुना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर ने बनाया था। तो GM mustard में क्या है? GM mustard has the genes of soil bacterium that give the plant property of pest resistance to a wide variety of pests. Next statement, GM mustard has the genes that allow the plant cross pollination and hybridization. GM mustard has been developed jointly by the IARI and पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बिकॉज अभी मैंने बताया कि वो DU में के सेंटर से बना था। इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? इसमें होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, इसलिए GM मस्टर्ड बनाया गया है। ये भी गलत हो गया। पेस्ट रेजिस्टेंस की वजह से नहीं, ये सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बनाया गया, तो ये भी गलत हो गया। इसमें से बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो थर्ड इज GM mustard जीन दैट अलाउ प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। सॉरी, उल्टा मैं बोल रही थी कि इसमें क्या है, जो प्लांट है वो खुद में ही क्रॉस पॉलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा, तो दिस स्टेटमेंट विल बी राइट। ओके, सो यू हैव number 2 is only the right answer. Okay, next question. Which of the following leaf modification occur in the desert areas to inhibit water loss? अब क्या है, नॉर्मली हम हमेशा बुक में पढ़ते होते हैं जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं वो उसका कुछ अपना स्पेशल मॉडिफिकेशन होता है ताकि वो वाटर लॉस को बचा सके, ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर सके। तो इसके लिए हार्डी एंड वैक्सी लीव्स, टाइनी लीव्स, थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो टाइनी लीव्स होगा तो सरफेस एरिया कम होगा, तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। इसी सेम है हार्डी एंड वैक्सी लीव्स का। और थॉर्न्स जो है वो लीव्स के बदले वहाँ पे थॉर्न्स होते हैं, इसलिए ये तीनों मॉडिफिकेशन ही हेल्प करता है वाटर लॉस को रिड्यूस करने में, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, ऑल 3। सो दिस इज ये हम देख चुके हैं। This is all what we did. We covered all 2018 questions of BPSC as well as UPSC. We'll be moving forward with some more questions and then some more lectures on science and technology. Keep liking it and keep viewing all the lectures. Thank you.